سے کچھ زیر تکمیل ہے جبکہ دیگر پر جلد عمل درآمد کا آغاز ہوگا۔ ان میں گوادر میں 300 میگا واٹ پاور پلانٹ، گوادر واٹر پروجیکٹ فیز 2 اور 5 بلین گیلن کا ڈی سیلینیشن پلانٹ کی تنصیب، گوادر میں قائم 50 بستروں پر مشتمل ہسپتال کی 150 بستروں تک توسیع بھی شامل ہے۔ گوادر پورٹ ڈیولپمنٹ، گوادر پورٹ فری زون، LNG ٹرمینل، پاک چائنا ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، گوادر پورٹ بریک واٹر پروجیکٹ، گوادر پورٹ ڈرینیج پروجیکٹ بھی سی پیک کا حصہ ہے۔ گوادر پورٹ فری زون میں پہلے فش پروسیسنگ پلانٹ اور کولڈ اسٹوریج پلانٹ، الیکٹریکل موٹر بائک اسمبلی پلانٹ، خوردنی تیل کے پروسیسنگ پلانٹ، اسٹیل پائپ مینوفیکچرنگ پلانٹ، چینی اور پاکستانی اشیاء کا ڈسپلے سینٹر، 2 ویئر ہاؤسز، 2 ایکسپو سینٹرز اور ایڈمنسٹریشن بلاک کی تعمیر کے منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے۔ گوادر پورٹ اتھارٹی بزنس کمپلیکس پر بھی تیزی سے کام جاری ہے، جس میں گوادر گراب اور زربار تجارتی مراکز، GPA سمن سینٹر اور 4 ویئر ہاؤسز کے منصوبے شامل ہیں۔ معزز صحافی بھائیو، سی پیک پر عمل درآمد کے حوالے سے قائم پاک چائنا مشترکہ تعاون کمیٹی کے گزشتہ اجلاس میں ہماری کوششوں سے 12 منصوبوں کو شامل کیا گیا، جس میں کوئٹہ ماس ٹرانزٹ ٹرین، کوئٹہ کو پٹفیٹر سے پانی کی فراہمی، بوستان اور خضدار میں صنعتی زون کا قیام، جوب مول کوٹ شاہراہ کی توسیع، نوکنڈی ماشکیل پنجگور شاہراہ جیسے اہم منصوبے شامل ہیں۔ چین کے ماہرین پر مشتمل ٹیم نے کچلاک تا سپیزنٹ تقریباً 47 کلومیٹر طویل کوئٹہ لائٹ ٹرین سسٹم کے منصوبے کا سروے مکمل کر کے فیزیبلٹی رپورٹ حکومت بلوچستان کو پیش کر دی ہے۔ اس منصوبے کے دیگر مالیاتی اور تکنیکی امور کو جلد حتمی شکل دے کر اس پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سی پیک ملک دشمن قوتوں بالخصوص بھارت کی نظروں میں بری طرح کھٹک رہا ہے اور اس نے بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں بھی شرکت سے انکار کر کے اپنی بدنیتی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان مخالف عناصر سی پیک کو ناکام بنانے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں، جس میں دہشت گردی سر فہرست ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ فورم کے انعقاد کے دوران مستونگ میں خودکش دھماکہ اور گوادر میں بے گناہ غریب مزدوروں کی ٹارگٹ کلنگ بھی دہشت گردی کی انہی واقعات کا تسلسل ہے۔ ہم پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ سی پیک ہماری معیشت کی شہرگ ہے اور کسی کو اپنی شہرگ پر چھری پھیرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ خصوصاً بلوچستان کی جو معیشت ہے وہ سی پیک سے پر منحصر ہے اور ہم اپنی سے اس پر چھری پھیرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ سی پیک پاکستان اور بالخصوص بلوچستان کی معیشی اور اقتصادی ترقی کا حصہ ہے، جس پر ہر حال میں عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ شکریہ آپ سب کا، یہاں پر آپ لوگ آئیں۔ دیکھیں اس میں ایسا ایک ان کا پروسیجر ہے، جو سی پیک والے ہیں ان کا ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ پہلے ہم MOU ان کے ساتھ سائن کرتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں یہاں پر، ہم مل کے ہم ان کے ساتھ فیزیبلٹی بناتے ہیں، پھر جا کے جو ہے ہم ان کے ساتھ فائنینشیل جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو ابھی کچھ چیزیں جو ہے کیونکہ ہمیں جو ہے بہت سارے اس میں ٹینڈرنگ پروسیس میں بھی جانا پڑتا ہے، پھر جو ہے اس کے بعد فائنینشیل ان کے مسئلے دیکھنے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ابھی میں نے اپنے اس میں کہا کہ اس وقت ہم نے جو ہے فائنینشیل جو ہے وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ 3 منصوبے کے وہ کر لیے، ایسٹ وے کا اور
मास्टर प्लान का, वो कंप्लीट हो गया है और उसका पे अभी मैंने परसों दस्तखत किए थे, उस पर काम जल्द से जल्द शुरू होगा। और जैसे जैसे यहाँ से जो है वो फिजिबिलिटीज बनती जाएंगी और आगे चलती जाएंगी तो फिर उस पर जो है बाकायदा फिर अभी MOUs जो बनी है उसके बाद फिर जो है उस पर फाइनेंशियल जो है एग्रीमेंट होगा और फिर उस पर काम शुरू होगा। वेस्टर्न रूट के हवाले से काफी पॉलिटिकल पार्टी के कागजात है, तो इसलिए आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? इसका मैंने कितनी एजुकेशन इसके लिए हुई है वेस्टर्न रूट? इसका मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न रूट तो आना ही आना है और वेस्टर्न रूट सबसे ज्यादा जो है शॉर्टेस्ट रूट है और मुगल कोट DI खान टू मुगल कोट रोड जो है वो ये बन रहा है और उस पर जो है जैसे मैंने कहा कि अभी तक प्रोसेस में है और वो प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तो फिर मैं जाऊंगा वहां पर जो है हम बाकायदा उनका फाइनेंशियल एग्रीमेंट करेंगे और फाइनेंशियल एग्रीमेंट के बाद जो है वो उस पर काम शुरू होगा। जो काम हो रहा है जो शारा से या तो वो आपको बलोचिस्तान करा रही है? नहीं, ये तो चाइनीज और इस वक्त जो है NHA कर रहा है, लेकिन जो CPEC के उसमें है उसमें चाइनीज और यहाँ के लोकल जो है कंट्रैक्टर उसमें शामिल होंगे। पीने के पानी के मसले का बहुत बड़ा अभी आगे से हुआ ये कुछ हो गए, डैम भी हो गए, बारिशें भी वहाँ पे पीने का पानी इस वक्त सबसे बड़ी तर्जीह है वहाँ पे। अभी हम टैंकरों के जरिए पानी दे रहे हैं उधर। प्राइम मिनिस्टर साहब अभी वहां पर आए थे और उन्होंने एक ऐलान किया था डिसैलिनेशन प्लांट का। कितने गैलन का था? 5 मिलियन गैलन का। तो उसमें आधा हम पैसे देंगे, उसमें आधा जो है फेडरल गवर्नमेंट देगा। तो उस पर अभी जल्दी आज ही मैंने बात की है ACS से, कल भी मैंने मीटिंग की थी उनसे। तो मैंने कहा था कि आप वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस बात कर लें ताकि वो अपने पैसे रिलीज कर दे, फिर हम यहाँ से पैसे रिलीज करके एक डिसैलिनेशन प्लांट लगा दें वहाँ पर। लेकिन फिलहाल जो है हम उनको टैंकरों के जरिए जैसे पहले होता था वो लेके आएंगे। और एक और भी हमारी तजवीज ये है कि नेवी वालों को हमने कहा है कि उनके पास टैंकर है बड़े बड़े, तो उसमें ये है कि वो सस्ता भी पड़ता है हमें, हम नेवी के जरिए वहाँ पानी लेके आएं और वहाँ उसको खड़ा करें पोर्ट पर और फिर वहाँ से टैंकरों में डाल के नजदीक ग्वादर शहर को दें। क्योंकि अभी जो हम पानी ला रहे हैं वो कोई 150 किलोमीटर दूर से जो है पानी लेके आ रहे हैं, शादीकोर से और दूसरे जगहों से, तो इतना दूर है। तो ये दोनों उस पर वो कर रहे हैं। लेकिन ये है कि ये आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि ग्वादर के लोगों को हम प्यासा नहीं छोड़ेंगे। ग्वादर में यहाँ जो सीबीआई की सरगर्मियाँ आपने बताया कि वो बढ़ रही हैं, तो सिक्योरिटी मेजर्स हमसे कोई हमें बड़े नजर नहीं आ रहे। कोयडा में जो कोयडा स्पेस सिटी प्रोजेक्ट था वो 4 साल से ऐसी कहता है, ग्वादर स्पेस सिटी प्रोजेक्ट ऐसी कहती है, तो उसमें क्या डेवलपमेंट आती है? देखिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी यहाँ पर होती हैं। एक हमारा पेपरा रूल्स है, फिर बी पेपरा है और बहुत सारे मसले मसाइल है। फिर कोयटा सेफ सिटी का तकरीबन कंप्लीट हो गया है, उस पर इंशाल्लाह 10 से 15 दिन में वो बिड भी हो गया है और जो है दे देंगे, कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे और उसको हम कहेंगे कि उसको जल्द से जल्द उसको काम को शुरू करें। और फिर जो है हम ग्वादर की तरफ जाएंगे और ग्वादर सेफ सिटी जो है उसको भी हम बनाने जा रहे हैं और उसको भी इंशाल्लाह जो बेपरा रूल्स के मुताबिक जो होगा उसके तहत हम उसको टेंडरिंग करेंगे और उसके बाद जो है जो भी उसमें क्वालिफाई करेगा ठेकेदार उसको हम उसका काम दे देंगे। अभी आपने बेपरा का किसी भी सिविल हॉस्पिटल का मसला हो बेपरा रूल आ जाता है और कोई सिक्योरिटी का मसला, तो बेपरा का रूल तो एक बिल्कुल चरबा है। फेडरल गवर्नमेंट ने जो कुछ किया नहीं वो चीज प्रयोग कर दिया। अपने हालात के मुताबिक क्यों बेपरा रूल आप लोग नहीं बनाते, क्यों नहीं लाते? हाँ बिल्कुल, मैं इसके हक में हूँ। देखिए होना चाहिए इस तरह, हमारे लिए बिल्कुल बहुत ये लगता है ये मैसेज ये जाता है कि हम नालायक नहीं, नालायक की बात ही नहीं है, नालायक की बात ही नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी मसले मसाइल आ जाते हैं ब्यूरोक्रेसी के भी, हम तो डरते नहीं है। हकीकत है हम तो चाहते हैं कि लोगों के काम हों, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के मसले मसाइल होते हैं। वो कहते हैं कि जी इनको पूरा करना है आपने, तो जाहिर है हमने उनके साथ ही चलना होता है। लेकिन आपने अच्छी बात की शहजादा साहब, ये हकीकत है कि बेपरा की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट हो रहे हैं और बहुत सारे हडल हमारे लिए हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं इसको देख लूंगा, अपने कैबिनेट में भी इसको हम लाएंगे और इसको बड़ी अच्छी क्वेश्चन आपने की है और हम लॉ सेक्रेटरी को वो कहेंगे कि इसको देखे और जरूरत
के मुताबिक अगर हो तो ठीक है, लेकिन हर चीज में जैसे आपने कहा कि इमरजेंसी में भी कोई वो होता है, फिर उसके लिए भी 45 दिन हमें इंतजार करना पड़ता है, फिर उसमें फिर वो छोटी सी चीज पे जो है वो लगा देते हैं। हाँ, शफाफियत को भी मद्देनजर रखना होता है हमें, फिर वो छोटी सी चीज पे भी वो लगा देते हैं, फिर इसकी वजह से जो है फिर दोबारा हमें रीटेंडर की तरफ जाना पड़ता है। तो है, लेकिन ये वो दूसरी बात शफाफियत का भी है, उसकी वजह से हमें शफाफियत को भी मद्देनजर रखना होता है। नहीं, हो गया है टेंडर में। बहुत ज्यादा रेट बताया। जी हाँ, वो हाँ नहीं, वो कमेटी जो बनी हुई है ना, उस कमेटी को मैंने कहा है कि उनके साथ आप बातचीत करें और उनको नीचे लेके आएं, क्योंकि ये सेफ सिटी जो है कोई पुराना वो है। आप देखें हर चीज की जो है कीमतें, प्राइसेस जो है, पहले ये आपका कैमरा शायद मैं कह रहा हूँ 10 साल पहले, 5 साल पहले आपको 20-25 हजार रुपए में मिल जाता था, अभी शायद लेटेस्ट आए हुए हैं वो और वो होंगे। तो हम चाहते हैं कि क्वालिटी वाइज जो चीजें हैं वो यहाँ पर लगे, ताकि ये नहीं हो कि 3 महीने बाद जो है सब के सब जो है वो बैठ जाएं और फिर दोबारा हमें इसके लिए सर पकड़ना पड़े। तो हम चाहते हैं कि वो हो, लेकिन जो कमेटी है हमने उसको कहा है कि जी आप उनके साथ नेगोशिएट करें और उनको कहें कि जी आपने इतना ज्यादा दिया है, लेकिन जो लोएस्ट होगा ये हम आपको यकीन दिलाते हैं कि पेपरा, क्योंकि उसमें पेपरा जो है वो इन्वॉल्व है, भी पेपरा, तो उसमें हम उसको शफाफियत को मद्देनजर रखते हुए उसको जो लोएस्ट होगा उसको देंगे हम। जब भी ग्वादर के हवाले से, अनसिक्टेड के हवाले से कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होता है तो बलूचिस्तान में इस तरह ग्वादर का वाकया हुआ, मसूद का वाकया, बिल्कुल एक तो बैरूनी मुदाखलत आप कहते हैं, दूसरा ये क्या आप ये नहीं समझते कि हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी फेलियर नहीं है, उसको बेहतर बनाने के लिए क्या इंतजाम? देखिए, कोई फेलियर नहीं है, हम भी काम कर रहे हैं, हमने भी पकड़े हैं लोगों को, हमने भी लोगों को मारे हैं, लेकिन वो भी तंजीमें हैं, हमारे नेबर जो है वो कंट्रीज वहां पर बैठे होते हैं, उनको रॉ से फंड हो रही है, बहुत बड़ा पैसा जो है यहाँ पर बलूचिस्तान में आ रहा है। ऐसी बातें हैं जो मैं कैमरे के सामने नहीं कर सकता हूं, वैसे ऑफ द रिकॉर्ड आप लोगों को कभी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आप हमारे वो देख लेना, एक आदमी अगर 9 गोल रोक लेता है और 1 गोल हो जाता है तो वो ये नहीं देखता है कि भाई 9 गोल तो इस गोलकीपर ने बेचारे ने रोक लिए और 1 गोल हो गया तो फिर वो गोलकीपर की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो आप मैंने जैसे अर्ज किया, कैमरे के सामने हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन कभी अनऑफिशियली हम आपको बताते हैं कितना हमारे ऊपर प्रेशर है, हमारा पोरस बॉर्डर है, हमारा यहाँ वो है। और इस बात से मैं आपकी बिल्कुल वो करता हूँ कि जब भी बलूचिस्तान के हवाले से हम किसी फोरम पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो यहाँ पर वो प्री प्लान जो है वो इस तरह के जो है दहशतगर्दी करते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि हम इन दहशतगर्दों के इन कार्रवाइयों से बिल्कुल हमारे जो है अज़ाइम बिल्कुल वो नहीं है, हम बिल्कुल के सामने नहीं झुकेंगे। वो अगर ये समझते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयों से जो है हम जो है पीछे हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे, हम उनका मुकाबला करेंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप देखें 2013 के बाद ये 2012 को देखें, 2011 को देखें कि पाकिस्तान में एक दफा एक मैगजीन में मैंने पढ़ा कि 2012 में या 2012 में 2600 मुख्तलिफ ब्लास्ट हुए हैं, मतलब सुसाइडल भी हुए हैं, आईडीज भी हुए हैं, दूसरे भी हुए हैं। तो आप अगर एक साल में उसको मल्टीप्लाई करें तो 365 दिन से उसको आप करें तो एक दिन में 7 ब्लास्ट पाकिस्तान में हुआ करते थे। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से, और बलूचिस्तान की हालत तो आप लोगों के सामने थी कि लाशें यहाँ पड़ी होती थी, 100 आदमी जो है वो पड़े होते थे, कोई पूछने वाला नहीं होता था। लेकिन आज वो हालत नहीं है। लेकिन ये है कि दुश्मन है, वो भी जो है लड़ाई लड़ रहा है हमारे साथ, हम भी उसके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं से वो आ जाते हैं और इस तरह। और खुदकश को न यूरोप में आप देखें, एक मिनट हाँ, ये जो है यूरोप में भी आप खुदकश को रोक नहीं सकते हैं, आप अमेरिका ने इतने बड़े वो किए हैं, वो उधर रोक नहीं सकते हैं। तो हम अपने हवालों से कोशिश कर रहे हैं और हमने की है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि आपको भी पता होगा, आप सबको पता होगा कि आप उसको करें 6 और 7 धमाके दिन के बनते थे। लेकिन आज अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान में और उधर ये अमन अमान है, लोग अपने आप को सेफ महसूस करते थे। पहले तो बाजार में लोग फिरने के लिए भी मोहताज थे। लेकिन आप पहले तो पहले से जरूर कमी आई है,
अखबार में हम पढ़ते हैं, एक वाक्य है जैसे गफूर अहमदी साहब है, वो वाक्य तो जाहिर है गफूर अहमदी साहब ने खुद इसको तस्लीम किया कि कोई बगैर थ्रेट मुझे नहीं मुझे कोई थ्रेट थे और वो गए उनसे कुछ उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुझे कुछ गाड़ी नहीं थी, वो एक अलग बात है। जो लेबर का मसला है वहाँ पर तो ठेकेदार को गिरफ्तार करने में सारा मसला हल हो गया। नहीं, इंतजामिया ने, पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन की तो जिम्मेदारी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक वाक्य तुर्बत में होता है, उसके बाद बाहर से जितने मजदूर आते हैं उसको देखिए उस पर मैंने चाइना से शहजाद साहब मैंने बात की वहाँ पर उनसे, कमिश्नर से मैंने पूछा और मैं बिल्कुल डीसी के खिलाफ मैंने जीआईटी बनाई है और जीआईटी में जो भी रिपोर्ट आएगा, जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा, वो जीआईटी। और मैंने कमिश्नर से पूछा, कमिश्नर ने ये कहा कि जी हमें चूंकि ऑन गोइंग के लिए अभी पैसे रिलीज हुए हैं, शायद वो ठेकेदार को भी वो हुए, तो हमें किसी किस्म का जो है उसने इतना नहीं दिया है, आके जो है उसने काम शुरू किया है। तो मैं कमिश्नर की बात पर भी यकीन नहीं करता हूँ। मिनिस्टर सरफराज को मैंने कहा है कि सरवाई में जीआईटी हमने बनाई है और जल्द उसका रिपोर्ट आएगा, जो लोग इसमें वो होंगे इन्वॉल्व होंगे उनको मैं नहीं छोड़ूंगा, उनको कैफर किरदार तक पहुंचाऊंगा। और फिर मैं इस चीज की मजम्मत करता हूं कि जो लड़ने वाले हैं वो लड़े, हमारे साथ आके लड़े, जिनके पास बंदूक है उनके साथ आके लड़े, जिनका काम है वो जिनके साथ बंदूक है उनके साथ लड़े। ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ का शराफत है? जिन मुल्कों ने उनको पनाह दी हुई है उनसे भी मैं ये कहूंगा, क्या ये टेररिज्म नहीं है कि एक आदमी 52 टेम्परेचर में जो है वहां अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वहां पर आता है और वहां पर जो है वो करता है। आप आके उसको जो है निहत्ते आदमी को जिस तरह आप मुर्गी को पकड़ ले, उसको वो होता है, उसको आप काट ले, उसको खड़े लाइन में खड़ा करके जो है वो करते हैं। ये है आजादी। इस चीज से आपको आजादी मिलेगी। और जिन मालिक ने उन लोगों के सरबराहों को पनाह दी हुई है, क्या उन्हें ये नजर नहीं आता है कि ये इंसानियत की खिलाफ वर्जी है? ये जो है ये मासूम लोगों को, क्या इनके हाथ में बंदूक था जिनको मारा गया है? ये मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो डबल जो दोहरा मयार है, इसको भी जो इंटरनेशनल दुनिया है उसको भी ये दोहरा मयार जो है वो खत्म करना होगा। और जो लोग जहां दहशतगर्दी करते हैं उसको मारते हैं, गरीबों को मजदूरों को मारते हैं, वो नाराज हैं। और दूसरा जो दहशतगर्दी करता है वो टेररिस्ट है। जो भी गरीब नेते लोगों को मारेगा, आम लोगों को मारेगा, मैं समझता हूं हमारी नजर में हमारी असेंबली ने करारदाद पास की है, वो दहशतगर्द है और हम उसको जो है उन दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। और जो लोग उनको उनके सरगनाओं को जिन ममालिक ने पनाह दी हुई है, मैं उनसे भी ये कहूंगा कि आप आएं, हम बना रहे हैं, देखें कि किस तरह यहां पर वो हो रही है। ये दहशतगर्दी नहीं है कि आप 30-30 मजदूरों को खड़ा करके, पिछली दफा डॉक्टर मालिक के जमाने में भी इसी तरह इन्होंने किया था, अब भी ये इस तरह वो करते हैं। इससे मैं समझता हूं कि हम जो मजलूम लोग हैं, जिनके साथ इस तरह की वो की जा रही है, तो जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है उसको भी इस पर गौर करना चाहिए और इन लोगों को भी दहशतगर्द करार देना चाहिए। बॉर्डर पर कशीदगी बरकरार है, 13 रोज से बॉर्डर बंद है और आज फिर मीटिंग के चांसेस है, तो आप क्या कहेंगे, बॉर्डर कब तक खुल जाएगा? इस पे देखें, ये फॉरेन ऑफिस का मसला है और फॉरेन ऑफिस उनसे बात कर रहा है, तो फॉरेन ऑफिस उनके साथ बात करके मेरे ख्याल ये जल्दी मसला हल हो जाएगा। कोई उसकी वजह ये नहीं है, कोई वजह नहीं। शोएब मीर मेमन जो है वो रूटीन का अपना हुकूमत का वो है उमूर है। अभी एक सेक्रेटरी लगता है, दूसरा सेक्रेटरी चला जाता है, क्या वो होता है, वो तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो मुज़ाकरात का अमल है वो अब उसकी क्या सूरत है? क्या गवर्नमेंट अब भी मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रही है? जो लोग बाहर हैं और उनके साथ एक अमल शुरू किया था, कोई अमल शुरू नहीं हुआ था। क्वेश्चन पे जो आपने ऐलान भी किया था कि इसके हवाले से, ग्वादर के हवाले से जो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके ऊपर कानून साजी की जाएगी, तो क्या उसमें अभी तक कानून साजी नहीं हो सकी और क्या कोई रुकावट है? नहीं, उसमें हमने हमारी कैबिनेट ने पार्लिमानी कमेटी, काबीना की कमेटी हमने बनाई है, उस पर पार्लिमानी कमेटी हम उसको कहेंगे और उस पर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि उसको वो हमें देखना होगा, वेट करना होगा और उसको इंशाल्लाह हम वो करेंगे।
दूसरा आपने क्या कहा था? मुज़ाकरात हम उन लोगों से कर रहे हैं जो यहाँ पर हैं, जिनके साथ वो ईंधन के तौर पर उनको इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जिनको वो यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं 4 पैसों के लिए, 4 उनके लिए। हमारे राब्ते उनके साथ है और आप देख रहे हैं कि वो लोग अब पाकिस्तानी कौमी धारे में आके शामिल हो रहे हैं और अपने हथियार आके फेंक रहे हैं। हम उन लोगों के साथ बात कर रहे हैं। अभी इंशाअल्लाह अनकरीब रमज़ान से पहले या रमज़ान के बाद मैं ग्वादर भी जाऊंगा और वहां पर भी वो जो साउथ के लोग हैं उनके साथ हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। तो जो लोग यहाँ पर हमारे साथ मुज़ाकरात करते हैं, यहाँ पर बैठे हैं, हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन जो रॉ से फंडिंग देते हैं और यहाँ पर हमारे बच्चों को, नौजवानों को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम समझते हैं कि उनका कोई वो नहीं है। और बाकी वो तो वहाँ बैठे हुए हैं, अयाशियाँ कर रहे हैं। असल में तो बेसिकली जो है ईंधन के तौर पर तो इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। जब ये उनके साथ नहीं होंगे तो उनके आका जो है, जो भी होंगे, वो ऑटोमेटिकली जो है वो अपना हाथ उनसे खींच लेंगे। किस चीज का? खाना फलात तो उन्हीं के ग्रुप का एक हिस्सा है। खाना फलात भी उन्हीं के ग्रुप का एक हिस्सा है। हाँ, आपने काफी मुलाकातें की, तो उसने कहा था कि ग्रैंड का रिक्वेस्ट करेगा तो मैं आ जाऊंगा। आपसे बात की थी, क्या स्टेटस है? नहीं, देखें वो बांग्लादेश भी अभी गए हैं और भी जगहों पे वो गए हैं। हमारा प्ली ये है कि पहले आए, वो फ्रेमवर्क, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान के आइन को माने, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को माने। जो लोग आ रहे हैं वो भी, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी है, लेकिन वो आके अब अपनी गलती का अजाला कर रहे हैं, हथियार फेंक रहे हैं और पाकिस्तान का झंडा ले रहे हैं। हम पाकिस्तान का झंडा उनको पहना रहे हैं, उनके हाथ में पाकिस्तान का झंडा दे रहे हैं। वो पाकिस्तान की आइन को और पाकिस्तान की जो है उसको मानते हैं, तो हम वो करते हैं। अगर खाना फलाते इधर आते हैं और पाकिस्तान के जो है आइन को मानते हैं तो हम उनको वेलकम करेंगे। अगर खाना फलात वहाँ बैठ के जो है वो कहेंगे कि जी हम जो है मैं बलूचिस्तान को आज़ाद करके जो है मैं फिर जाऊंगा और वो करूंगा, तो फिर तो हम तो यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, हम तो इस चीज़ को फिर वो नहीं करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त असेंबली में बैठे हुए लोग हैं बलूचिस्तान के, जितनी भी आबादी है उसकी नुमाइंदगी हम सब कर रहे हैं। जो असेंबली के मेंबरान हैं हम कर रहे हैं। और जो लोग कहते हैं कि बाहर बैठे हुए लोग हैं बलोच, हम क्या है? हम बलूच नहीं है क्या? हम यहाँ सन ऑफ सॉइल नहीं है क्या? ये पश्तून नहीं है क्या? ये बलूच नहीं है? ये क्या? ये बलूच नहीं है, सन ऑफ सॉइल नहीं है क्या? और मैं समझता हूँ कि जो मैंडेट है इस वक्त हमारे ही पास है और किसी के पास मैंडेट नहीं है। अब कोई भी उठ के यहाँ से चला जाए और जाके वहाँ पर दे ले। एक हमारी जो है बेटी है, लड़की है, नायला कादरी, वो भी जाके बाहर बैठ के बातें करती है। तो फिर ठीक है, करने वाले करते रहे, हम अपना काम करते रहेंगे, वो अपना काम करते रहे। अब तो ये है। असेंबली में करप्शन की बात हुई है, सूबाई वज़ीर दाखिला ने भी कहा है कि पोस्टें जो है वो बिकी हैं। हाँ। जबकि ब्यूरोक्रेसी का भी आपने भी जिक्र किया है कि वो रुकावट होती है। क्या ब्यूरोक्रेसी आपके दफ्तर से बाहर है? क्या मतलब उसमें आगे पोस्टें? देखिए, हाँ, आप वजाहत करें इसकी, क्योंकि इस पे आज मैंने बात की है, परसों मैं इस पे वजाहत करूंगा। वो इस तरह नहीं है, कोई भी मतलब अखबारों ने वो किया है, काइंडली इसको आप लोग ठीक कर लें और हमारे तर्जुमान आप वो करेंगे। हमारे दोस्तों का कहने का ये मतलब था कि जेल खाना जात में कुछ पोस्टें थीं जिस पे मैंने एक्शन लिया और हमारे मिनिस्टर साहब ने हमें शिकायत की कि इनमें कुछ ले दे हुई है, जिस पर मैंने जो है उसको, मेरा हक है, मेरा राइट है, मैंने एक्शन लिया उसके खिलाफ और उस जो है आईजी को जो है मैंने चेंज कर दिया। लेकिन जाके उसने जो है वो वहां से स्टे ले लिया, कोर्ट से जाके जो है स्टे ले लिया। इसी बुनियाद पर मैंने उसको वो कर दिया था, चेंज कर दिया था। बाकी मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि जहां पर भी मेरे नॉलेज में होगा हम बिल्कुल मेरिट की बुनियाद पर पोस्टें वो करेंगे। और जो भी जहां पर भी मेरे उसमें होगा, चाहे कोई मेरा मिनिस्टर भी अगर उसमें इन्वॉल्व होगा या कोई सेक्रेटरी भी उसमें इन्वॉल्व होगा, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये कहता हूं कि मैं उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करूंगा और उसको नहीं छोड़ूंगा। और ये पोस्टें अमानत है,
ان لوگوں کی، ان نوجوانوں کی، ان بچوں کی جو بے روزگار ہے، اور ہم نے جو ہے بڑی مشکلیں ان سے بڑے دل گردے کے ساتھ یہ پہلے سے بہت 20 سال سے یہ پوسٹیں پڑی ہوئی تھی، کسی وزیر اعلیٰ نے یہ نہیں ہمت کیا کہ ان کو نکالے. میں نے ہمت کر کے میں نے ان کو نکالا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جو بے روزگار لوگ ہیں، ہمارے نوجوان جو ہے، یہ پوسٹیں جو ہے ان کو ملے، تاکہ ہم رہیں یا نہ رہیں لوگ ہمیں یاد کریں. سرفراز صاحب آپ اس پہ کریں گے؟ اس پہ ایک چھوٹا سا کمنٹ کروں گی. جب ہمارے نالج میں یہ چیز لائی گئی اور اس کرپشن کی نشاندہی ہوئی تو آنریبل چیف منسٹر نے ایک کمیٹی بھی بنائی جو اس کی انویسٹیگیٹ کر رہی تھی. مین وائل انہوں نے اس کے جو پوسٹنگ آرڈر ہے اس کا بھی حکم دیا، جس پر وہ کورٹ چلی گئی. آج ٹریبونل نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا اور اس کی پوسٹنگ آرڈرز اس کو OSD کر دیے. دوسرا جو بھرتیوں کا معاملہ تھا، بھرتیوں کے معاملے میں بھی وہ کورٹ میں کچھ لوگ گئے اور کورٹ نے ڈیسیجن گورنمنٹ کے اگینسٹ دیا. گورنمنٹ اب اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جا رہی ہے اور ہم سپریم کورٹ میں اپنا کیس کا دفاع کریں گے. ہمیں یہ یقین ہے کہ جہاں بھی گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کا نوٹس لینا گورنمنٹ کا فرض ہے، اور گورنمنٹ کو جب یہ پتہ چلا اگر ہم کرپشن کے ساتھی ہوتے تو ہم اس پر خاموش ہو جاتے ہیں. ہم خاموش نہیں رہیں گے. ہم کسی کو یہ نوکریاں، جس طرح چیف منسٹر صاحب نے فرمایا، یہ لوگوں کی امانت ہے، ہم اس میں خرید و فروخت کرنے نہیں دیں گے. بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشن ہیں کیبنٹ کے ممبرس کو. مجھے خود CM صاحب نے میں نے روز قیامت جواب دینا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی منسٹر بھی اس میں انوالو ہو تو آئی ول ناٹ اسپیئر ہم. سو دیر از نو زیرو ٹالرنس ٹوورڈز یہ کہ لوگ جہاں پہ ماضی میں ہوتا رہا ہوگا، کاروبار ہوتے رہے ہوں گے کہ 7 لاکھ روپے میں نوکری بک رہی ہے، 3 لاکھ میں بک رہی ہے، اب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. ایک جگہ پہ شکایت ملی ہے، ہم اس کو اینڈ تک لے کے جائیں گے، آخری جو کورٹ ہے ادھر تک جائیں گے اور انشاءاللہ یہ ثابت کریں گے کہ اس میں گڑبڑ ہوئی تھی اور ہم گڑبڑ نہیں کرنے دیں گے. کی پوسٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں اور میرے خیال 11-12 ڈیزیشن سب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ جو اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس لسٹیں آ جاتی ہیں کہ جی یہ ان کو بھرتی کرنا ہے تو ہم یہ نہیں کر سکتے، نئے میں ہمیں جواب دینا پڑتا ہے. یہی ہے نا، دیکھیں نا مسئلہ یہی ہے. 25-26 ہزار فی الحال، باقی جی ہاں. جون کا ان پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، میرا خیال اس کا وہ نہیں ہے. جون کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہے، لیکن نہیں پڑے گا. لیکن یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ جلدی سے جلد جو ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے اشتہارات آ رہے ہیں اخبار میں جو ہونے بس بہت سی جگہ پہ ہوئے ہیں، بہت سی جگہوں پہ نہیں ہوئے ہیں. انٹرویو بھی ہوئے ہیں، ٹیسٹ بھی کمپلیٹ ہوئے ہیں. جو ہانیبل سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق بالکل ہم دے رہے ہیں. اور میرا خیال ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے آ رہے ہیں، وہ انٹرویو بھی دے رہے ہیں اور وہ وہاں پر جو ہے پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں. تو جو لوگ آئیں گے انشاءاللہ، ہم جیسے میں نے کہا کہ ہم میرٹ کی بنیاد پر جو ہے ہم لوگوں کو جو ہے وہ نوکریاں دیں گے. اور آنے والے انشاءاللہ جو وہ ٹائم ہوگا اس میں بھی ہماری کوشش اور ہوگی کہ نیکسٹ بجٹ میں بھی اتنی ہم پوسٹیں جو ہے بلوچستان کے لوگوں کے لیے نکالیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ خان ظاہری کابینہ ارکان کے ہمراہ کوئٹہ میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ مزدوروں پر فائرنگ کے واقعے میں ملوث ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ دورہ چین میں چاروں وزرائے اعلیٰ نے شرکت کر کے یکجہتی کا اظہار کیا. دورہ چین میں بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے بہت سے منصوبوں پر دستخط ہوئے ہیں.